अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर हैदराबाद के इलाके अत्तापुर रिंग रोड के पास लॉरी ड्राइवर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। यहाँ ये एहतजाज मरकजी हुकूमत के हिट एंड रन काले कानून के खिलाफ किया गया था और हुकूमत से इस काले कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया, जहां पर मरकजी हुकूमत ने हिट एंड रन केस में 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद की सजा ट्रैक्टर ड्राइवर्स को सुनाई है, जिसके खिलाफ एहतजाज जारी है। ड्राइवरों की हड़ताल चल रही सो है आरामगढ़ से अत्तापुर तक। ये जो कानून गलत कानून पास करे सो है, इसको वापस लेने के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे सो है। 10 साल की सेल 10 लाख रुपए चालान बोल के बोल रहे हैं। कहाँ से लाके बनेंगे हम लोग? गरीब आदमी हम लोग, ड्राइवर करना तो खाना बोले करता है, हम लोगों से नहीं हो सकता। ये हम लोग इसके लिए हड़ताल कर रहे हैं। सबकी यही जैसा चल रही है, हम भी वैसे चलेंगे। ये सबके ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है, ये क्या तो भी ये जुल्म होगा ये पूरे ड्राइवरों के ऊपर। हम गाड़ियाँ चलाएंगे, गरीब आदमी खाएंगे क्या, करेंगे क्या बोलो? हमारे है 15,000 सैलरी, डेली का 500 रुपये कमाने वाले हम। हमारे संग ऐसा करे तो हुकूमत भी देखना ना। ओवरलोड गाड़ियाँ रहती है हमारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15,000 रुपये तनख्वाह में क्या जुल्म हो रहा, आप लोग ही देखिए। हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी कुछ मदद करिए। शाह साहब से गुजारिश है, ये कानून को वापस लीजिए। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने सिकंदराबाद जोनल ऑफिस में डेटा एंट्री प्रोग्राम का मुआयना किया और कहा कि शहर भर में ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा रही हैं। इसके लिए हमने 5,000 डेटा एंट्री अमले को मसरूफ किया है। हमने हर ऑनलाइन दरख्वास्त में डेटा दाखिल करने के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। हमें हर वार्ड में 4 मराकज में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इसी तरह हम उन्हें ऑनलाइन कर रहे हैं और कहा कि हम हुकूमत की तरफ से दिए गए वक्त के मुताबिक डेटा एंट्री मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। हमने दरख्वास्तें मुंतकिल करने में गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। చాలా చక్కగా అప్లికేషన్స్ 6వ తారీఖు వరకు కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మొత్తం మన జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 25 లక్షల అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగినాయి. మనకు 5 గంటలకు సంబంధించి 19 లక్షలు, ఇతర సంబంధించి 5,75,000 కలిపి 14,000 లక్షలు, 24,70,000 అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగినాయి. సో ప్రభుత్వం ఈ అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా మన కంప్యూటరైజ్ చేయమని మనకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగినాయి. దానికి డేటా ఎంట్రీకి సంబంధించిన ప్రక్రియ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకుని ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు దాకా దాదాపు 6.5 లక్షల అప్లికేషన్ సంబంధించిన డేటా గత 3 రోజుల్లోనే మనం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ డేటా ఎంట్రీ ప్రక్రియ ఎట్లా కొనసాగుతుందంటే మనం ఇంతవరకు కలెక్ట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా మన డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫీస్ అర్బన్ ఏరియాలో, రూరల్ ఏరియాలో, మండల ఆఫీస్లో మనం బ్లాక్ అండ్ ఫీలో పెట్టుకోవడం జరుగుతాయి. డేటా ఎంట్రీ సెంటర్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ సెంటర్స్కు దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆ సెంటర్లో మన డేటా ఎంట్రీ ఆఫీసర్స్ పెట్టుకొని మనం దాన్ని కూడా కంప్యూటరైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ అన్నవాళ్ళు మన జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మనం గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు మనం ప్రైవేట్ వాళ్ళని కూడా డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్గా మనం పెట్టుకోవడం జరుగుతున్నాయి. బట్ వాళ్ళందరికీ కూడా క్యాస్కేటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగినాయి. ముందుగా మనం స్టేట్ లెవెల్లో ట్రైనర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది 5వ తారీఖు. 6వ తారీఖు మేము జోనల్ లెవెల్లో కానీ సర్కిల్ లెవెల్లో కానీ డేటా ఎంట్రీ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతున్నాయి. ప్లస్ ప్రతి వాళ్ళు కూడా సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్స్ చేయడం జరుగుతాయి. ప్రతి రిజిస్టర్స్ కూడా రిజిస్టర్స్ అన్ని కూడా ప్రతి ఆపరేటర్కి ఫామ్స్ ఇస్తున్నాము. ఆ ఫామ్స్ మనం దాని మీద సూపర్వైజరీ చెక్, వాళ్ళు కరెక్ట్గా క్వాలిటీ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారా అని కూడా చేసుకోవడం జరుగుతాయి. ఇవి కాకుండా ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ కూడా మనం అందరూ కూడా స్ట్రీట్ వర్క్లోనే చేస్తాము. ఆ స్ట్రీట్ లెవెల్ కూడా చూడవచ్చు. ఎవ్రీవేర్ లాక్ అండ్ కీ మీదనే మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతాయి. వాళ్ళకి అప్లికేషన్ నెంబర్ మనం క్వాలిటీ చెక్ కోసం అని ర్యాండమ్గా ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని దాన్ని కూడా వెరిఫై చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఇవి కాకుండా టీమ్ లీడర్స్ అందరి మీదనే ఈ బాధ్యతలు ఇవ్వడం జరిగినాయి. మీ అందరికీ తెలిసినవి జిహెచ్ఎంసీలో 635 టీమ్స్ మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వార్డుకు 4 నుంచి 5 టీమ్స్ చొప్పున ప్రజలకు ఏమి ఇబ్బంది కలగకుండా అందరికీ మనం జరుగుతున్నాం. సో ఆ టీమ్ లీడర్ అనేవాళ్ళు మనకు ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రజాపాలన అప్లికేషన్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టేసి ఎండ్ టు ఎండ్ వాళ్ళని కూడా స్పెషల్ ఆఫీసర్ పెడతాము. ప్రతి సర్కిల్లో కూడా ఒక హెచ్ఓడి లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళని స్పెషల్ ఆఫీసర్గా వేయడం జరిగినాయి. ఇవి కాకుండా జోనల్ కమిషనర్స్ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా 6 స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ని స్పెషల్గా దీనికోసం అని ప్రజాపాలన కోసం నియమించడం జరిగినాయి.
వాళ్ళు కూడా ప్రతి జోన్ తిరిగి అప్పుడప్పుడు సలహాలు సూచనలు వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ప్లస్ మనకు డేటా సెక్యూరిటీ అనేది కూడా కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో వేయడం జరిగినాయి. సో డేటా సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మాకు తెలుసు. సో దాని ప్రకారమే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్లీ శానిటైజ్డ్. మనం క్లియర్గా మన లాక్ అండ్ కీలోనే పెట్టడం జరుగుతాయి. అండ్ అగైన్ మన ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ అట్ ద సెంటర్ లెవెల్. డేటా సెంటర్స్ అని ఏర్పాటు చేసుకుంటాము. అది గవర్నమెంట్ స్పేస్ కావచ్చు, కొన్ని చోట్ల ప్రైవేట్ స్పేస్, ఎక్కడ ఎక్కడ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ తీసుకువెళ్ళి మన ఆఫీసెస్ ఆధారంగా డేటా ఎంట్రీ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. తీసుకునేది మా ఆఫీస్ తీసుకుని ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ సర్కిల్ ఆఫీస్. సో దే వర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ దట్ టు ద సర్కిల్ ఆఫీస్. వార్డ్ ఆఫీస్లో కంప్యూటర్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అక్కడ ఉన్న టీ కమిషన్లో. అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి పొద్దున్న బయట తీసుకొచ్చినప్పుడు కొంతమంది తీసుకున్నారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో మేము క్లియర్గా చెప్తున్నాము, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ 2 వీలర్లు చేయకూడదు. క్లియర్గా వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్స్ పెట్టి తీసుకువెళ్ళాలి. దానికోసం అక్కడ ఉన్న అధికారి కూడా నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్లస్ క్లియర్ కట్ ఆదేశాలు అందరికీ ఇచ్చాము. ఫార్మ్స్ అనేది సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అన్ని జాగ్రత్తలు ఆల్రెడీ SOPs అనేది గవర్నమెంట్ ఇచ్చారు, మేము కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగినాయి. అది ప్రకారం తప్పనిసరిగా పాటించాలని కూడా చెప్పాను. 17th లోపల దీన్ని పూర్తి చేయమని చెప్పాను. 17th లోపల పూర్తి చేసుకోవడానికి ఉన్న ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేసుకున్నాము. దాదాపు మనం 5,000కి పైన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ని ఎంగేజ్ చేసుకున్నాము. సో ఒక షిఫ్ట్కు 8 hours షిఫ్ట్ మనం అనుకుంటే అరౌండ్ 70 to 80 ఫార్మ్స్ వరకు ఒక డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ చేసుకోవాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. 17th లోపల కూడా అన్ని జిల్లాలతో పాటు ఏర్పడుతుంది. नेशनल तेलुगुदेशम पार्टी के सदर बोबली आए, जिसका आगाज साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने किया है। श्रीकाकुलम हल्के इंतखाब तेलुगुदेशम पार्टी के इंचार्ज साबिक MLA गुंडा लक्ष्मी देवी ने मीटिंग में शिरकत की। हल्के मुबस्सिर चिंतला रामकृष्णा राशिता रेतु सांगला जनरल सेक्रेटरी और संतोष सुधाकर, जिले तेलुगुदेशम के तर्जुमान मुद्दा कृष्णमूर्ति नायडू व दीगर इस दौरान मौजूद थे। न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। बुध को तेलंगाना भवन में वरंगल पार्लियामेंट लोकसभा हल्के की तैयारी के इजलास के दौरान एक खिताब में भारत राष्ट्र समिति BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में अपनी जीत पर एतमाद का इजहार किया और पार्टी केडर से तंजीम को निचली सतह पर मजबूत करने की कोशिशों को तेज करने की ताकीद की। हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करते हुए केटिया ने पार्टी के अराकीन पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज करें और ऐलान किया, आइए असेंबली के नताइज को एक तरफ रखें और अपनी तवानाइयों को लोकसभा की मजीद सीटें जीतने की तरफ लगाएं। KCR की क़यादत में तेलंगाना की तरक्की के तई पार्टी के अज़्म पर जोर देते हुए केटिया ने KCR की दहाइयों पर मुहित अनथक कोशिशों पर रोशनी डाली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बुध को सेक्रेटरिएट में अमेजॉन के नुमाइंदों से मुलाकात की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। अमेजॉन के नुमाइंदों ने मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर को तेलंगाना में अमेजॉन की सरमायाकारी के बारे में जानकारी फराहम की। मरकजी हुकूमत के जरिए हाल ही में मुतारिफ कराए गए हिट एंड रन क़वानीन के खिलाफ आदिलाबाद जिले में एहतजाज शुरू किया गया। इसी के तहत आदिलाबाद शहर मुस्तकिर के RTC ट्रैवल अहाते में RTC प्राइवेट हायर बस ड्राइवर्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम हिट एंड रन क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना मुनक़िद किया गया। RTC प्राइवेट हायर बस ड्राइवर्स हड़ताल पर जाने की वजह से प्राइवेट बस सर्विस बंद कर दी गई, जिससे मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। ड्राइवर्स ने मरकजी हुकूमत से इस मसले पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए मुतारिफ कराए गए हिट एंड रन कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह किया। प्राइवेट हायर बस ड्राइवर्स एसोसिएशन के एडवाइजर मोहम्मद अब्दुल मजीद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। मैं मोहम्मद अब्दुल मजीद प्राइवेट हायर बस यूनियन ड्राइवर का एडवाइज़र हूँ। ये स्ट्राइक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कानून निकले हुआ है, जो बिल पास हुआ है, ड्राइवर को 10 साल सज़ा, एक्सीडेंट करे तो 10 साल सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना जो है, वो जो है हमारे वास्ते बहुत गलत कानून है, काला कानून समझते हैं उसको। हमारे को फांसी देने के बराबर है। इसलिए हम जो है इसके खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। आज गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं। आइंदा हमारे जो तुम्हारा कानून है वो कानून वापस लिए तक हम जो है गाड़ियाँ नहीं चलाते। हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास मेहनत कर तो पैसे आते, नहीं तो पैसे नहीं आते।
हम महीना भर मेहनत करें तो हमको 10 से 15 हज़ार रुपये नौकरी गिरती, वो नौकरी में हम हमारे बाल बच्चों को पाल रहे, वो बहुत बड़ी बात है हमारे वास्ते। अब हमारे को ऐसे बड़े बड़े कानून ला के हमारे ऊपर लागू करे तो हम घर के रहते ना घाट के रहते, हमारी पर मेहरबानी करो ये कानून वापस ले लो। ये हमारे को जो है ये स्ट्राइक में हमारे को जो है सपोर्ट बड़ा अच्छा, हमारे ओनर्स जो है उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं हमारे को सब सपोर्ट करो, हमारे परेशानियों को समझो, स्पेशली जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो लोगों को सबको हमारा रिक्वेस्ट है हमारे को सपोर्ट करो, हमारे को जो है हमारे परेशानियों को समझो, हमारे परेशानियों को समझ के हमारे को जो है हमारी मदद करो बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भुवनेश्वरी की जानिब से कारकुन के अहले खाना को ताज़ियत पेश की गई। भुवनेश्वरी जिसने अलवालगांव गोनी गुंडला मंडल एमिगनूर हल्के में और ना 45 साल के खानदान से मुलाकात की। चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के दौरान नाराजगी की वजह से उनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। इसके बीवी करेका को भुवनेश्वरी ने तसल्ली दी। भुवनेश्वरी ने मुतासरा खानदान को 3 लाख रुपए की माली इमदाद भी फराहम की। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले श्रविया चेलानी नोएडा दिल्ली में मुनक़दा कौमी मुकाबला हुस्न में ताज जीता है और हुस्न की मलिका बन गई। फातेह श्रविया ने कहा है कि उसने मिस और मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम मुकाबला हुस्न में हिस्सा लिया और साउथ इंडिया क्रॉन के साथ साथ मिसेस फिट और मिसेस परफेक्ट बॉडी 2024 के टाइटल जीते हैं। जनूबी हिंद की जानिब से 5 रियासतों की ख्वातीन ने हिस्सा लिया। फाइनल के लिए 36 अफराद का इंतखाब किया गया और उन्होंने कहा है कि वो साउथ जोन का ताज जीत कर खुश हैं। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए बताया गया है कि उन्होंने फिटनेस किट, कैटवॉक, स्पीकिंग और सवाल जवाब की तरबियत गुज़िश्ता 6 महीने से हासिल की और उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइटल हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। నమస్కారం అందరికీ, నా పేరు శ్రావ్య చిల్లా. నేను హైదరాబాద్ నుండి మిసెస్ ఇండియా క్వీన్ ఆఫ్ హార్ట్స్ బ్యూటీ ప్యాజెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. అందులో నాకు సౌత్ జోన్ కి ఒక క్రౌన్ వచ్చింది, జోనల్ క్రౌన్ వచ్చింది. అదే కాకుండా 2 సబ్ టైటిల్స్ వచ్చాయి, ఒకటి మిసెస్ ఫిట్ ఇంకా మిసెస్ పర్ఫెక్ట్ బాడీ. నా గురించి చెప్పాలనుకుంటే నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని, నాకు 12 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. నాకు వివాహమైనది, 2 పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఫిట్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను భావిస్తాను. సో నేను ఎప్పటి నుంచో ఫిట్గా ఉండాలి, అందరినీ ఫిట్గా ఉండాలని కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాను. దానివల్లే నాకు ఈ ఈవెంట్లో మెయిన్గా 2 సబ్ టైటిల్స్లో కూడా నాకు ఫిట్నెస్కి సంబంధించినవి వచ్చాయి. దానికి నేను నిజంగా చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అండ్ ఈ పర్టికులర్ బ్యూటీ ప్యాజెంట్ కోసం నేను జూన్ నుంచి నన్ను నేను సిద్ధపరచుకున్నాను. నా ఫిట్నెస్ విషయంలో కానివ్వండి, లేకపోతే నా వాక్ విషయంలో కానివ్వండి, నేను మాట్లాడే ఇంట్రడక్షన్, అక్కడ ఇవ్వాల్సిన వాటి గురించి Q&A కానివ్వండి, వీటన్నిటి కోసం నేను ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 months ప్రిపేర్ అయ్యాను. అండ్ నా ఎజెండా అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఇవ్వాలనుకున్నది అందరూ ఫిట్ ఉండాలి, పెళ్ళైన తర్వాత కూడా, పెళ్ళి కాక ముందు కూడా అందరూ ఫిట్ ఉండాలనేది నా ఎజెండా. అది నేను అందరికీ చెప్పాలని నేను వెళ్ళాను అక్కడికి. మిసెస్ ఇండియా క్వీన్ ఆఫ్ హార్ట్స్ అనేది కంప్లీట్ ఒక నేషనల్ ప్యాజెంట్ అండ్ అనేక రాష్ట్రాల నుంచి, మొత్తం ఇండియా నుంచి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చారు. ఫైనల్స్లో మొత్తం 36 మంది వచ్చారు. 36 మందిలో నాకు 2 సబ్ టైటిల్స్ వచ్చాయి అండ్ నాకు సౌత్ రాష్ట్రం నుంచి 5 రాష్ట్రాల నుంచి హైదరాబాద్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన నాకు సౌత్ జోనల్ క్రౌన్ వచ్చింది. నేను చాలామందితో పార్టిసిపేట్ చేసి 3.5 minutes ప్లాన్ చేసి గెలిచాను. సో అది ఈజీగా వచ్చిన టైటిల్ కాదండి, నేను చాలా కష్టపడి గెలుచుకున్న టైటిల్ అది. सुनील डिम्पल सदर मिशन स्टेट हुड ने आर्टिकल 370-35A पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है। ANC के नायब सदर मुजफ्फर शाह, PM पीपल्स मूवमेंट डॉक्टर हुसैन और तकरीबन तमाम दरख्वास्त गुजारों ने नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक ज़रूरी पैगाम कि आर्टिकल 370 की वापसी के लिए हमने फिर से सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है और इस मौके के ऊपर मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को 1,30,00,000 आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों को सभी से ये कहूँगा कि हमारा फिर से ताबुन करें, हमें आशीर्वाद दें
ताकि अब की बार जो हमने रिव्यू पिटीशन 370-35A की वापसी के लिए जो जंग हमने 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी और सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के दर्जे की वापसी का फैसला और चुनाव करवाने का फैसला सुनाया था, लेकिन 370 की एब्रोगेशन को बहाल किया रखा। लेकिन हमने रिव्यू पिटीशन में फिर से पूरे कानून के जानकारों के मुताबिक जो ये कहा गया था कि इसमें फैसले में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल खामियां रह गई हैं, जिसकी तरफ हमने सुप्रीम कोर्ट माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को फिर से रिव्यू पिटीशन दायर आज कर दी है। और इस मौके के ऊपर मैं तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, सभी से ये कहूँगा कि वह भी अपनी रिव्यू पिटीशंस दायर करें, क्योंकि आप तो 370 की ऊपर बयानबाजी करते हैं, स्पेशल स्टेटस की ऊपर बयानबाजी, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर की अवाम के वजूद को बचाने के लिए, अगर ये 370 की जंग, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, अगर 100 सालों तक भी ये जंग लड़नी पड़े तो हम ये लड़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2 बार 370 को और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार 370 को तोड़ने से मना कर दिया था कि इसको हटाया नहीं जा सकता। कुछ वजूहात रही होंगी। हम हम्बली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से फिर रिव्यू पिटीशन दायर हमने कर दी है, और अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को 1,30,00,000 अवाम के मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है। और इस आज जो हमने पिटीशंस दायर की हैं, उसमें मेरे मित्र अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह साहब और पीपल्स मूवमेंट के डॉक्टर हुसैन, मिशन स्टेटहुड और बाकी के भी पिटिशनर्स जो हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के पहले वाले पिटिशनर्स हैं, वो भी रिव्यू पिटीशंस दायर कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं की हुई है, पहले पिटीशन दायर नहीं की हुई है, वो अब कर दें। जिन नेताओं ने जो चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जो सरकारें बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आइए हमारे साथ इस जंग में शामिल हो जाइए। आज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मिशन स्टेटहुड, पीपल्स मूवमेंट और बहुत से साथी, हमने रिव्यू पिटीशन हमारे वकीलों ने दायर कर दी है और पूरी उम्मीद करते हैं कि ये वापस आएगा, क्योंकि हम अपने आने वाली जनरेशन, पीढ़ियों का हम मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और यही नहीं, मिशन स्टेटहुड ने यह भी कहा है कि इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें भी हमको वापस मिलनी चाहिए, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ था। और हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, और अब हमें पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल और एक संविधानिक जंग लड़ रहे हैं। और जितने भी देश के बड़े बड़े कानून के जानकार हैं, स्कॉलर्स हैं, लॉ नोइंग्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इस फैसले में बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, जिसको ऊपर ध्यान करवाना और रिव्यू होना बेहद ज़रूरी है। और हमें पूरा भरोसा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमें पूरा इंसाफ देगा। लेकिन मुबारक की बात यह है, सभी को, मैं सभी 1,30,00,000 अवाम को, सभी को कहूँगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम इस जंग में अब कामयाब हों। धन्यवाद। ये बेहद ज़रूरी पैगाम था जो मुझे सभी को पहचाना था, अवाम को, पत्रकारों को, मीडिया बंधुओं को, सभी को ये पहुंचाना था कि हमने रिव्यू पिटीशन 370-35A के लिए, यही नहीं, रियासत के दर्जे में देरी कर रहे हैं, इसको लेकर के भी, और चुनावों में भी देरी ना हो, इसको लेकर के भी, पार्लियामेंट के चुनावों के साथ चुनाव करवाए जाएं, इसको लेकर के भी, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को फिर से लागू किया जाए और प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए, और उस शक्ल में हमें रियासत वापस मिले, जिन शक्ल में हमारे बुजुर्ग जो हमें ये विरासत दे करके गए थे, 370-35A स्टेट सब्जेक्ट, इल्हाक की शर्तें, और इसको लेकर के हमने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। जय हिंद, जय भारत।
नारा भुवनेश्वरी की कारकुन के अहल खाना से ताजियत। भुवनेश्वरी ने अराबादो गांव गोनीगुंडला मंडल एमिगनूर हल्के में टीडीपी कारकुन कालो तलिया के खानदान से मुलाकात की। कालो तलिया 60 साल जो चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी की वजह से दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। कौदलिया की बीवी लक्ष्मी देवी और खानदान के अफराद को तसल्ली दी। भुवनेश्वरी ने मुतासरा खानदान को 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। खेदान वतन पंजाब बयान सीजन 2 आज बाज़ाब्ता तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जीतने वालों के लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपए की इनामी रकम जारी की गई, जो बराह रास्त उनके बैंक खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। खेल वतन पंजाब बयान के इक़दाम से पंजाब भर में बच्चे खेलों में शामिल हो रहे हैं और हर साल उनकी तादाद में इजाफा हो रहा। विजयवाड़ा के एमपी कासानी नैनी, जिन्होंने हाल ही में टीडीपी छोड़ी है, उन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात में टीडीपी जनसेना इत्तेहाद के लिए 40 असेंबली सीटों की पेशगोई की थी। उन्होंने एपी के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। गवर्नर का शुक्रिया, जिन्होंने कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान का इस्तीफा कबूल किया, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर टीएसपीएससी सफाई के हिस्से के तौर पर इस्तीफा दिया। हुकूमत मुलाजिमत के नोटिफिकेशन और शफाफ भर्तियों के लिए पुरअज़्म है, जिसका लाखों बेरोजगार अफराद इंतजार कर रहे। हुकूमत जल्द ही एक नया कमीशन बनाएगी और तेजी से नौकरियों को भरने के लिए इक़दाम करेगी। इस सिमत में वज़ीर आला ने कहा है कि टीपीसीसी के रियासती नुमाइंदे की तरफ से पहले ही इक़दाम किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें मंशूर कमेटी के अरकान डॉक्टर रियाज ने कही है। टिमरीज का हेड ऑफिस अनीसुल गुरबा बिल्डिंग नामपली में मुंतकिल होने जा रहा है, जिस पर चारमीनार हल्के बीएसपी से मुकाबला करने वाले एमएलए अबरार हुसैन आजाद ने इसका खैर मकदम किया। बादजा उन्होंने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़राए अबलाग के ज़रिए ये इत्तला मिलती है कि तेलंगाना अखामती स्कूल का सदर दफ्तर जो रोड नंबर 10 बंजाहिज पे क़ायम है और जो एक किराए की बिल्डिंग में मौजूद है, उस ऑफिस को अनीसुल गुरबा नामपल्ली एक मीनार मस्जिद के करीब इसको मुंतकिल करने की ये जो इक़दामात है, इसका हम खैर मुक़द्दम करते हैं। ये क़ल्ब शहर में ये ऑफिस रहेगा। बिलखुसूस अक़लियतों को और अज़ला से आने वाले हजरात को सदर दफ्तर से रुजू होने में बहुत ही आसानी होगी। और इसी तरह तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के जो सदर दफ्तर के अखराजात है वो तो कमी होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ अनीसुल गुरबा जो यतीम बच्चों का जो है ना मुस्तकिल रिहाइशगाह है, इसकी निगहदाश्त, देखभाल और यहाँ पे मौजूद बच्चों की परवरिश के लिए खुद रास्त सेक्रेटरी साहिबा इस पर नज़र रखेंगी, जिसके ज़रिए तमाम रियासत के अक़लियत बिलखुसूस यतीम बच्चे इसमें दोबारा जो है ना दाखिल किए जा सकेंगे। क्योंकि जिस वक्त में अनीसुल गुरबा की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ, बहुत कम तादाद अनीसुल गुरबा में बच्चों की हुआ करती थी और उनको टेम्पररी तौर पर मुर्शिदाबाद रेजिडेंशियल स्कूल, अखामती रेजिडेंशियल स्कूल में जो है ना इनको रखा गया था। और कई एक मौक़ों पर मुझे इन तुलबा को, बिलखुसूस यतीम तुलबा के साथ रहने का और इनको देखने का मौका मिला, तो वहाँ पे एक चीज़ महसूस की गई कि टिमरीज स्कूल के जो स्टाफ था, जिसमें यतीम बच्चों के लिए एडिशनल स्टाफ को रखा गया था, वो बहुत ख़ास तवज्जो के साथ उनकी जो है ना निगहदाश्त करते थे। तो यही सदर दफ्तर अगर अनीसुल गुरबा बिल्डिंग में आएगा तो अखराजात तो अपनी जगह बचेंगे ही बचेंगे, ख़ास करके यतीम बच्चों की जो निगहदाश्त है और उनकी जो देखभाल है उसका भी काम आसान होगा। क्योंकि आम तौर पर देखा गया कि अनीसुल गुरबा में साबिक़ में भी कई एक धालियाँ हुई हैं और कई एक यहाँ पे भी मसाइल हमेशा रोनुमा हुआ करते थे। तो लिहाजा मैं इस इक़दाम की जो है ना पुरजोश तौर पर इस्तकबाल करता हूँ। और कारवान यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर मोहम्मद शफीउद्दीन ने सैयद आरिफ पाशा कादरी खलीफाए अकबर सजादा नशीन बारगाह सरकार लोबाली कदासा सिरोहो करनूल और जनाब रिजवान पाशा कादरी से मुलाकात की और
حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گوشہ محل صدر محمد جمیل، ورکنگ پریزیڈنٹ محمد ریاض، وائس پریزیڈنٹ محمد عبدالرؤف، جنرل سیکرٹری محمد اعجاز، وائس پریزیڈنٹ عبدالستار محمد حبیب کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کا خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔